Monica and I am your e-pedagogue for the subject of science. Students, today we are going to learn something so interesting that all of us have but not everyone knows. Let's start with the help of a poem. My eyes can see the big bright sun. My nose can smell all the hot cinnamon buns. My ears can listen to all the loud drums. And my tongue can taste all the good things. Oh, so yum. My hand can feel all of the sand. Wow, what fun. I like my senses, everyone. Students, I hope you took a hint that what we are going to learn today. These are all of our sense organs, the 5 sense organs in our body. But today, we are going to learn about something more than these sense organs. These are called our super senses. Just like we have superheroes in our lives, we have some super senses which are the superheroes of our body. Students, not only us humans are equipped with all these super senses, but there are a lot of animals who are equipped with all of these and many more super senses. ये वो सुपर सेंसेस हैं बच्चों जो हमें हमारे एनवायरनमेंट को और ज़्यादा बेहतर एक्सप्लोर करने में हेल्प करती हैं। तो आज हम यही सब जानने वाले हैं क्लास 5th की EVS की NCERT चैप्टर 1 सुपर सेंसेस के साथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि NCERT हमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऐसा आप में से किसी के साथ हुआ है कि आप सभी एक पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और ऊपर से कोई ईगल या कोई भी बर्ड आकर आपकी रोटी लेके गई है? क्या लगता है बच्चों आपको ऐसा क्यों होता है? तो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया जाता है कि एक ईगल आपकी रोटी इतनी दूर से कैसे देख सकती है, इसका आंसर बच्चों हमें इसी चैप्टर में मिलेगा। ईगल की सुपर सेंस यानी कि ईगल जिसके पास एक सुपर सेंस है ऑफ साइट, यानी कि एक ईगल बहुत दूर से बहुत क्लियर देख सकती है। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों से ईगल 8 टाइम्स ज्यादा क्लियर देख सकती है। Isn't that amazing, students? इसीलिए जब हम सब नीचे खेल रहे होते हैं और ईगल को छोटे छोटे दिखते हैं, वो एक छोटी सी रोटी भी उसके लिए बहुत इजी है आकर ले जाना। बच्चों, क्या आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं घूमने गए हो और कोई बंदर आके आपका आम पापड़ ले गया हो? मेरे साथ तो बचपन में बहुत हुआ है बच्चों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंकी, एक बंदर के पास भी एक सुपर सेंस है टू स्मेल द आम पापड़ वी हैव। ऑल्सो उसे वो बहुत अच्छा भी लगता है, जैसे कि हमें भी लगता है, बट हम इतनी दूर से उसे स्मेल करके कैच नहीं कर सकते, whereas a monkey can easily do it with the help of super senses. बच्चों, ऐसा कितनी बार होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं या मम्मी जनरली भी जब हमें समझाती है तो ये कहती है कि कुछ भी मीठा या कुछ भी आटा या कुछ भी खाते हुए नीचे नहीं गिराना, चींटियां आ जाएंगी। बच्चों, आपको ऐसा क्या लगता है कि चींटियों के पास जो हमसे इतना दूर है वो हमारा खाना आके खा लेंगी? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि एंट्स के पास भी ये सुपर हीरो सेंस होती है ऑफ स्मेलिंग। जब भी हम कुछ नीचे गिराते हैं या उन्हें कुछ भी स्मेल आती है तो वो बहुत दूर से भी उस ट्रेल को फॉलो करते हुए उस खाने के पास आ जाती हैं। इससे बच्चों हमें ये भी पता चलता है कि हमारे आसपास कितने सारे एनिमल्स हैं जो हमसे दिखने में तो बहुत छोटे हैं बट उनके पास बहुत सारी सुपर हीरो सेंसेस है। इसी के साथ बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Students, now it's time for a fun story. Let us all listen to this story about Molly the ant. Molly, who's an ant who always loves to eat food. Molly is friendly with everyone. We can all see Molly moving here and there around us. But students, what is so special about Molly?
The special thing about Molly is she loves to explore places. Wherever she goes, she searches for food, for friends. Now once, Molly went to this far, far land. Do you know what happened? She met a lot of other ants like her, but she did not know a single one. Neither did any of them knew Molly. Students, do you think they will welcome Molly? How can they know that Molly is a friend to them? And how can they know that they have to welcome Molly? What happened with Molly was, when she was trying to enter their hole where all of them lived, a guard came out. Why do you think, students, that happened? How did the ants came to know that there was another ant approaching their hole? That is because of their superhero sense of smelling. All the ants knew that they had to send the guard to the hole so that they could see what was Molly doing. Since we knew at the start of the story that Molly was a very friendly ant, so what she did was she entered the hole, pleased the guards and told them that they were a friend to them. That is how Molly the ant entered the hole and made new friends. But this is how we know that all the ants around us have the super sense of smelling. Whenever they see another ant or any other creature, they activate their sense of smell, and that is how they know someone is trying to approach them or someone is trying to go somewhere. That is also how they follow for food. So this was a very fun story about Molly. Let us understand a few more things about ants by answering these few questions. Students, let's see an activity here. Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. तो बच्चों, ये सब आप अपने घर पे कर सकते हो, पर इसकी वजह से आपको आपकी मम्मी से डांट भी पड़ सकती है। तो प्लीज उनकी परमिशन के साथ कुछ भी मीठा जैसे चीनी या गुड़ आप थोड़ा सा जमीन पर गिरा सकते हैं और फिर आपको क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज ऑब्जर्व। आपको देखना है कि वहां पर वो सारी चींटियां, अगर कोई चींटी आती है, क्या लगता है बच्चों आपको, क्या चींटियां आ पाएंगी? अगर वो चींटियां आती हैं तो इन क्वेश्चन के बेसिस पे हम देखते हैं कि वो चींटियां क्या करती हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? क्या लगता है बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग 15 to 20 मिनट्स और लेस के अंदर सारी चींटियां जो भी आसपास है वो अपनी सुपर हीरो सेंस ऑफ स्मेलिंग को यूज करके वहां पहुंच जाएंगी टू ईट योर जैगरी, योर शुगर, एनीथिंग दैट यू हैव ड्रॉप्ड। इसके बाद देखते हैं बच्चों, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर? क्या लगता है बच्चों आपको, क्या ऐसे एक एक एंट आएगी या उनका ट्रेल आता है? आई थिंक बच्चों अ ट्रेल वुड कम। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी एंट्स जो हैं ग्रुप में ट्रैवल करती हैं और सभी अपनी सेंस ऑफ स्मेल को फॉलो करते करते एक दूसरे तक और खाने तक पहुंचती हैं। इसके बाद हमने देखा व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड? क्या लगता है बच्चों आपको, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सारी एंट्स इस खाने के ऊपर चढ़ गई हैं, तो हमारा खाना जाता कहाँ है? बच्चों इसका ये आंसर है कि ants eat in groups। तो इससे क्या होता है बच्चों, जो भी आपका चीनी है, गुड़ है, उसके आसपास जो सारी ants हैं इकट्ठा हो जाएंगी और फिर उसको खाती हैं। Where do they go from there? क्या लगता है बच्चों आपको कि ants कहाँ चली जाती हैं? I think वो जहाँ से आई हैं वहीं चली जाती हैं। Do they move in a line? This is a very important observation to note students कि क्या वो ants लाइन में मूव करती हैं? जैसा कि हमने देखा जब हमने ants की मूवमेंट देखी थी in the start of the video, तो इससे हम सभी ये पता लगा सकते हैं कि yes, all the ants move in a line. This was a very fun task to do with ants, and we also got to meet Molly the ant, who is all our friend.